Namaskar. This is Professor S. Lal, Professor of Mathematics and Computing. In the Department of Science and Technology under the Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Students, मैं आज आपको फंक्शन का जो रेस्ट पार्ट है उसको पढ़ाऊँगा. आई विल टीच टू यू द रेस्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर फंक्शन. दिस इज डॉक्टर एस लाल, JVW, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर. Topic today we are going to discuss, that is mapping, or its name is function, for 12th IIT JEE. So students, मैं आपको आज फिर एक बार मैपिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा, बताऊँगा. आई विल ट्राई टू explain some facts related to mapping, or you can say function. तो in yesterday lecture, in previous lecture, जो हम लोगों ने डिस्कस किया आपको याद होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइंड कि फंक्शन क्या है, मैपिंग क्या है. देन इट्स सम practical applications. After that, classification of classification of function on the basis of set theory, जिसमें मैंने आपको बताया into function, onto function, one function and many one function. These four types. उसमें इस फोर टाइप्स के जो दो इम्पोर्टेंट टाइप थे, दैट वाज इनटू एंड ऑनटू, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था. टुडे वी शैल डिस्कस. Please write the topic. Today we are going one function, one function or one mapping. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? Today we are going to discuss one function or one mapping. For that, let us take two sets in the form of Venn diagram. Venn diagram के फॉर्म में दो सेट्स लीजिए, बीच में f दिखाइए. ए फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम a to b. एक एलिमेंट लीजिए x1, x2, x3. वेन डायग्राम में a में आप वर्टिकल ले लीजिए ऊपर से नीचे, x1, x2, x3. फिर b में ले लीजिए y1, y2, y3. नाउ अब x1 का इमेज बनाइए y1 पर, x2 का y2 पर, x3 का y3 पर. दिस इज व्हाट? दिस इज one फंक्शन. दिस इज one फंक्शन. यहाँ जो f इज मैपिंग फ्रॉम a to b है,
एफ इज मैपिंग एफ, दो बिंदु बीच में ए, एरो मार्क्स तीर का निशान, एंड बी, इसको क्या क्या पढ़ते हैं? दिस इज रीड एज एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है? एक फंक्शन है ए से बी में, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस फंक्शन इज कॉल्ड हियर 1-1 फंक्शन। मीन्स, so what is the meaning of the term 1-1? What is the meaning of the term 1-1? 1-1 का मतलब क्या हुआ? अगर फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी हो इस तरह से कि ए के अलग अलग एलिमेंट का बी में अलग अलग इमेज बन रहा हो, फॉर ए सिंगल एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ए देयर इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड ए यूनिक इमेज इन द कोडोमेन बी, then this rule f is called called an 1-1 function. यहाँ आप देखेंगे in this case you can see here range of a is equal to b. Range of a means set of the images of the elements of a. Range of a means the set of the images of the elements of A. This is called range of A, and this is equal to what? This is equal to B. So मतलब B में क्या है? B में आपका है y1 y2 y3, तो आपका ये सेट B क्या है? दिस इज y1 y2 y3, यह एक सेट है। और ए के इमेजेस का एलिमेंट अगर बनाते हो, x1 का इमेज किस पर बनता है? y1 पर, तो y1 ले लो। x2 का इमेज किस पर बन रहा है? y2 पर, y2 ले लीजिए। x3 का इमेज किस पर बन रहा है? y3 पर, टेक y3, इसका भी सेट बना लीजिए। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज रेंज ऑफ ए। ये रेंज ऑफ ए मीन्स एफ ए। तो देखो आप, एफ ए और बी बोथ आर इक्वल, means range of A is identical to B. So this is called what? This is called 1-1 function. अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, it is important for you to be serious or be informed in advance that ये जो 1-1 function है, it may further be divided into two parts. Please note, 1-1 function or 1-1 mapping may be divided into two parts. First क्या होगा? First is 1-1 onto, O-N-T-O, and the second is 1-1 into. First is what? First is 1-1 onto, second is what? 1-1 into. तो आपने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया है 1-1 onto का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of 1-1 onto? onto का मतलब हो गया A के प्रत्येक एलिमेंट्स का B में इमेज बन रहा है, अलग अलग बन रहा है। B में एक ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसका A में प्री इमेज न हो। If I say you in English, then I can say that for every elements of set A, there exists unique image in the set B, and every elements of B has pre-image in the set A. Then this is what? This is onto function. तो ये 1-1 है, एक का एक पर इमेज बन रहा है, बट दिस इज 1-1। और 1-1 into का मतलब क्या हुआ? प्लीज़ एक डायग्राम खींचिए। लेट अस फॉर्म ए वेन डायग्राम।
आप एक वेन डायग्राम बनाइए, एक सेट ए लीजिए, दूसरा सेट बी लीजिए, टेक ए सेट ए अनोदर सेट बी, और एफ क्या है, दिस इज ए फंक्शन, एफ इज ए फंक्शन, यहाँ लिख दो x1 x2 x3 इन सेट ए। बी में लिखिए y1 y2 y3 एंड y4। अब x1 का इमेज बनाइए y1 पर, x2 का इमेज y2 पर, x3 का इमेज y3 पर। आफ्टर दिस आप क्या देख रहे हैं, आफ्टर दिस यू आर फाइंडिंग दैट बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ए में कोई प्री इमेज नहीं है। देर इज ए एलिमेंट इन सेट बी which has no pre-image in the set A. So if you say that if or let F is mapping from A to B be such that every element subset A has unique image in the set B, but B has no pre-image in the set A, तो ये क्या हो गया, this is 1 1 into। तो 1 1 कहने का मतलब हो गया कि 1 1 ऑनटो भी हो सकता है, 1 1 इनटू भी हो सकता है। इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट 1 1 फंक्शन, इफ समवन इज टॉकिंग अबाउट 1 1 फंक्शन, तो 1 1 फंक्शन 1 1 ऑनटो भी हो सकता है, 1 1 फंक्शन 1 1 इनटू भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1984 में IIT में आया था, उस समय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि प्रूव दैट, प्लीज राइट इन प्रेजेंट सिनारियो, दिस इज इम्पोर्टेंट इन ऑब्जेक्टिव सेट, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिस में बी इम्पोर्टेंट, प्लीज राइट प्रूव दैट only 1 1 onto function, prove that only 1 1 onto function has its inverse function। आप कहेंगे इसका मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन के जो आपने 4 टाइप्स लिखे थे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन, ये 4, फिर चारों को कंबाइंड किया था तो 4 और हो गया था, 1 1 इंटू, 1 1 अंटो, मेनी वन इंटू, मेनी वन अंटो। तो ये जो 8 फंक्शन थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 1 अंटो फंक्शन का ही इनवर्स मैपिंग हो सकता है। Only 1 1 onto function has its inverse function। क्यों? क्योंकि अगर आप f is mapping from A to B करोगे, मतलब A के सारे एलिमेंट्स, A के फंक्शन f हो रहा है, फंक्शन f एक मैपिंग है जो हो रहा है किससे, A से B में, मतलब A के एलिमेंट्स का B में इमेज बन रहा है। अगर आप F इनवर्स B टू A का मतलब क्या हो गया, फंक्शन रिवर्स हो गया, B से A में हो रहा है। तो अगर A में 3 एलिमेंट्स है और B में 3 एलिमेंट्स है, A के एक एलिमेंट का दूसरे पर, A के दूसरे एलिमेंट का B में दूसरे पर, A के तीसरे एलिमेंट का तीसरे पर इमेज बन रहा है, तो इट्स इमेज, आप इसको प्रूफ भी दे सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू गिव प्रूफ, but you have to remember just that only 1 1 onto function has its inverse function। केवल इसको हिंदी में अगर कोई कहना चाहे तो हिंदी बहुत टफ है, हिंदी में कहेगा तो ऐसे कहते हैं, केवल एकाएक आच्छादक फंक्शन का प्रतिलोम फलन होता है। देखिए हिंदी कितना टफ है, एकाएक, एक एक को एक साथ मिला दिया गया, आच्छादक। It is very difficult to understand the meaning of the term आच्छादक, but it is very simple to understand the meaning of onto, O-N-T-O।
So students, in initial stage it may be difficult for you to understand the meaning of the terms in English, but in long term it will be beneficial for you. And since though you are preparing for the competitive engineering entrance examination, and in future you have to study in the engineering colleges or in a university where there is engineering study like Jyoti Vidyapeeth Women's University for girls. So in that circumstance you have to you should have knowledge of English. आपको अंग्रेजी आना चाहिए. अगर नहीं आती है तो यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव. टाइम्स ऑफ इंडिया एवरीडे पढ़िए. ट्राई टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया एवरीडे. विद इन 6 months यू विल बी ए स्मार्टर इन इंग्लिश. वो आपको पढ़ा देगा, वो आपको इंग्लिश समझाना सिखा देगा. सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. हमने आपको बताया, कल तो मैंने बताया था इनटू, फिर बताया था अनटो, अभी बताया 1-1. नाउ लेट अस कम ऑन द 4th पॉइंट, दैट इज प्लीज राइट many one, MANY, many one function, many one function, many one function और many one mapping. many one function और many one mapping. लिखिए प्लीज़, many one function और many one mapping क्या है. नाम से ही स्पष्ट है, बहुतों का एक पर. जैसे मैंने स्टरडे व्हेन स्टरडे और ये डे बिफोर स्टरडे जब मैंने स्टार्ट किया था फंक्शन, तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि ऐसा संभव है कि एक क्लास में 5 स्टूडेंट है तो ऑल 5 स्टूडेंट्स एक ही बेंच पर जाकर बैठ जाएं, या ये संभव है कि 5 स्टूडेंट अलग अलग 5 बेंच पर जाकर बैठे. ये दोनों ही फंक्शन के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं. लेकिन एक स्टूडेंट 5 बेंच पर जाकर बैठेगा ये संभव नहीं है. मतलब एक एलिमेंट का एक से अधिक जगह इमेज नहीं बन सकता है. यही आपको समझना है फंक्शन में. एक से लेके और 9 डिजिट तक के बहुत सारे मोबाइल नंबर हो सकते हैं, बट एक ही नंबर के 2 मोबाइल नंबर नहीं हो सकते हैं. ऐसा होगा तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम फ्लप कर जाएगा और फंक्शन विल बी फेल्ड. हमने स्टार्टिंग में कहा था कि और कंप्लीट बाइनरी कन्फिगरेशन और कंप्लीट एनालिसिस that is based on the, and you can say application of web communication is based on the chapter mapping or function. So students, it is very practical and important for you to understand that ये function क्या है. तो many one, बहुतों का एक पर. आप एक सेट लीजिए वेन डायग्राम के फॉर्म में, यानी एग के जैसा, अंडा के जैसा बनाइए. आपको दिख नहीं रहा है जो मैं लिख रहा हूँ कॉपी में. आई एम अनेबल टू शो दिस. आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे. आप लेफ्ट हैंड साइड में एक वेन डायग्राम ए बना दीजिए. इसमें आप लिख दीजिए x1, x2 एंड x3. यू राइट x1, x2, x3 इन सेट ए. अब एक दूसरा सेट बना दीजिए दाहिने साइड में, राइट हैंड साइड में, वेन डायग्राम में बी, और यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए वाई. अंदर जो आपने अंडाकार आकृति बनाया है, जो आपने एक वेन डायग्राम बनाया है, उसमें आप वाई लिख दीजिए. अब आप x1 को मिलाइए वाई से जो LHS में है, x2 को मिलाइए वाई से, x3 को मिलाइए वाई से, और ए और बी के बीच में कनेक्ट करिए एफ से, बाई सेइंग दैट कि एफ इज़ ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी. आप यहाँ क्या देखा, x1 का इमेज y पर बन रहा है, x2 का इमेज y पर बन रहा है, x3 का इमेज y पर बन रहा है.
दैट इज मेनी वन फंक्शन। सेट ए के अलग अलग एलिमेंट का सेट बी में एक ही जगह इमेज बन रहा है। आपके हाथ में टॉर्च है, मेरे हाथ में टॉर्च है, आपके भाई के हाथ में टॉर्च है, आपके बहन के हाथ में टॉर्च है। हम सभी लोग किसी एक कॉर्नर पर छिपे हुए एक चूहे पर फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज मेनी वन। बहुतों का इमेज एक जगह बन रहा है, चूहे के आँख पर, चूहे के देह पर। सो दैट इज व्हाट? दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मेनी वन। सो मेनी वन इज व्हाट? आप इसको कहेगा कि लेट, यू कैन राइट इट्स डेफिनेशन, लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए और बी, एफ उसके आगे दो बिंदु दे दीजिए, ए तीर का निशान दे के बी लिखिए। इसको क्या पढ़ेंगे? एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, उसके बाद फिर लिखिए बी सच दैट मोर देन वन एलिमेंट सबसेट ए, प्लीज राइट, मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डोमेन ए। ए इज व्हाट? दिस इज डोमेन सेट, डोमेन ए। लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी विच सच दैट मोर देन वन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज unique image in codomain B or in B, then this function f is called a many one function। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इस फंक्शन को हम कहेंगे दिस इज ए मेनी वन फंक्शन। स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे कि मेनी वन फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स, एवरीडे रात में 9:10 पर मैं फेसबुक लाइव आता हूँ, जहाँ मेरा टारगेट होता है फेसबुक के माध्यम से उन बच्चों तक पहुँचना जिनकी पढ़ाई बाधित है, जो अपने इंस्टीट्यूट से अलग हैं, जो अपने कोचिंग संस्थान से अलग हैं, जो अपने टीचर से अलग हैं, जिनके इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, जिनकी पढ़ाई बाधित है और वो पढ़ना चाहते हैं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन। हम उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं विदाउट एनी ग्रिड, निःशुल्क, बिना किसी लालच के। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई स्टूडेंट है तो आप उसको ये मैसेज दे दीजिए कि वो हमारे 9:10 पर स्टार्ट होने वाले एवरीडे के फेसबुक लाइव सेशन में हमसे जुड़ करके इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले सकता है। वो स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो सकता है। कोई भी स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री और इवन दोज हु आर इन अब्रोड कैन बी बेनिफिटेड। अभी हम 12 का जो स्टार्टिंग चैप्टर है वहाँ से शुरू किया है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस 2 चैप्टर ख़त्म किया है। एंड द थर्ड चैप्टर वी हैव स्टार्टेड अप 12 दैट इज ऑल्सो इन IIT JEE, वो है फंक्शन और मैपिंग जो हमने अभी स्टार्ट किया है। यू कैन पास दिस इंफॉर्मेशन टू योर स्टूडेंट्स, योर कलीग्स, योर नेबर्स, योर नियरर एंड योर डियरर। आप इस सेशन के बाद इस पर जो वीडियो है फेसबुक पर, इसको भी आप स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, सो दैट कि वो इसे पढ़ के कुछ बेनिफिट ले सकें। सो स्टूडेंट्स, नाउ ये मैंने आपको बताया था, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ set theory. Now please see classification of function on the basis of geometry. ज्योमेट्री के आधार पर फंक्शन के क्या प्रकार हैं, क्या है। दिस इज बाइजेक्टिव,
bijective, bijective function. Then next is injective function, and third is surjective function, surjective, surjective function, bijective function, injective function and surjective function, जिसको अगर आप सीक्वेंस चेंज कर दें, अगर इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव और सर्जेक्टिव कह दें तो इसी को आपने इनटू, ऑनटो और वन वन फंक्शन कहा था। बस नोमेनक्लेचर हैज़ बीन चेंज्ड, मीनिंग इज़ द सेम। इस बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव को आप कह सकते हैं BIS, 20, 19-20 जैसे आप कहते हैं BIS। मैंने फंक्शन के जो 4 टाइप्स हैं मैंने उसका कोडिंग किया था MOOI, MOOI, MOOI मीन्स इनटू, ऑनटो, वन वन, मैनी वन। आज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आज हमने क्या देखा, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। सो अब ये तो हो गए फंक्शन के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। नाउ टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के आधार पर फंक्शन के क्या टाइप हैं, प्लीज राइट। फर्स्ट, कांस्टेंट फंक्शन, CONSTANT, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। सेकेंड, आइडेंटिटी फंक्शन, IDENTY, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज रेसिप्रोकल फंक्शन, RECI, रेसिप्रोकल फंक्शन। एंड द फोर्थ इज व्हाट, इक्वल फंक्शन, इक्वल फंक्शन। तो ये इसको आप कोडिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखोगे, CIRA, सीरे, CIRE, सीरे। दिस इज व्हाट, दिस इज सीरे। अगर आप सीरे याद रखें, CIRA, तो दिस यू कैन रिमेंबर द टाइप्स ऑफ ए फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के आधार पर जो फंक्शन के 4 टाइप हैं उनका आप क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। कांस्टेंट फंक्शन किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन। जब आप पढ़ते हैं, जब आप 12th में जाएंगे या आप 12th में पढ़े होंगे तो आपके टीचर्स ने बताया होगा d/dx ऑफ स्मॉल a इज इक्वल टू 0। तो कहता होगा कि a क्या है, a इज ए कांस्टेंट, और वो कह सकता है कि a इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 होता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0। आइडेंटिटी फंक्शन इज व्हाट, दैट इज गिविंग यू यूनिट वैल्यू। रेसिप्रोकल फंक्शन का रिवर्स, और इक्वल फंक्शन तो आप समझते ही हो, AF इज इक्वल टू GF। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू रिवाइज्ड दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। सो हमने आपको अभी बताया कि द फंक्शन हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेट थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ एलजेब्रा। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज, इस सब के अलावा एक और भी चीज़ मैं जो आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा, that plays very vital role during your study of different engineering numerical problems, that signum function क्या है, what do you mean by signum function? signum function
कैन यू टेल मी, बता सकते हैं सिग्नम फंक्शन क्या है? एक आदमी गाना सुना रहा है एक आदमी को, गाना गा के, कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह बदलने का मतलब क्या हुआ? जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये है मौसम। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आदमी के जो चरित्र है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो बिहेव है, ये सब अलग अलग तरीके से हो रहा है। हम इतना गाना ना कह के कह सकते हैं कि द बिहेव ऑफ द पर्सन इज सिग्नम, SIGNUM, दैट बिहेव ऑफ द पर्सन इज सिग्नम, द सिग्नम नेचर, द सिग्नम बिहेव। आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, fx इज इक्वल टू 0, कब? वैन x इज इक्वल टू 0, और +1 कब? जब वैन x ग्रेटर देन 0, और -1 कब? जब x लेस देन 0। यानी आप यूँ समझिए, f एक तराजू है, f इज ए वेट मेजरिंग मशीन। इस पर आप जब इस f इज ए, यू कैन से, वेटिंग मशीन। इस पर आप जब x को चढ़ाते हैं तो उसके 3 अलग अलग वैल्यू आते हैं। कभी वो 0 आता है, कभी वो 1 आता है, कभी वो -1 आता है। 0 कब आता है? जब डायरेक्ट x का वैल्यू 0 रहता है। 1 कब आता है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मीन्स x इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। -1 कब आता है? जब x लेस देन 0। तो आपने क्या देखा? अलग अलग परिस्थितियों में कंडीशन के हिसाब से फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है। आदमी का नेचर देखिए, वो भी सिग्नम है। आप उससे कुछ मांगने के लिए जाइए, उसका जवाब सुन लीजिए क्या देता है। वो जब खुद आपसे आता है कोई चीज़ मांगने, तो फिर उसका लैंग्वेज समझिए कि वो किस तरह से बोलता है। और जब आप दे दिए और फिर उससे मांगने के लिए जाइए, तब देखिए वो किस तरह से बोलता है। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आदमी तो वही है, बट जो वेरिएबल का वैल्यू है वो जिस तरह से चेंज होता है, उसका रेंज वैल्यू भी उसी तरीके से चेंज होते जा रहा है। हम इसको फंक्शन के भाषा में ऐसे कहेंगे, मतलब दैट इज़ द सिग्नम बिहेव, दैट इज़ द सिग्नम कल्चर, दैट इज़ द सिग्नम एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। सो स्टूडेंट्स, यू हैव रिटन fx इज इक्वल टू 0, कब? जब इसमें x 0 हो जाए। फंक्शन में जब x का वैल्यू 0 हो तो ये 0 होगा। देन दिस इज fx is equal to 0 when x is equal to 0, fx is equal to 1 when x is greater than 1, fx is equal to -1 when x is less than 1। आप कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन दैट इन सिग्नम फंक्शन इज इट नेसेसरी टू टेक ओनली दिस 3 कंडीशंस? क्या ये सिग्नम में यही 3 कंडीशंस हैं, इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, या और भी कोई सिग्नम फंक्शन हो सकता है? बिकॉज आप कंटिन्यूटी चैप्टर देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर स्टडी। देर आर सो मेनी फंक्शंस दैट कॉन्टेंस डिफरेंट कंडीशंस। कहीं x इज़ ग्रेटर दैन 2, कहीं x इज़ लेस दैन 3, कहीं x इज़ ग्रेटर दैन 5, कहीं x इज इक्वल टू 6। अलग अलग कंडीशन पर फंक्शन के अलग अलग तरह के मान हैं। तो एक ही फंक्शन का मान अलग अलग कंडीशन पर जब अलग अलग आने लगे, तो आप ये समझेंगे कि दैट फंक्शन इज ए सिग्नम फंक्शन। स्टूडेंट्स, you are advised that to make your this understanding more clear, kindly open the chapter continuity, or you should open the chapter continuity and try to see. There are, after question number 8 in your exercise in NCERT book,
you may find that almost the questions are based on the concept of signum function concept. तो हमें उसमें फ्यूरियस होने की ज़रूरत नहीं है. There is no need to be feared. The need is to just understand the hidden fact कि हमें कहाँ इसको अप्लाई करना है. I hope students that आप समझ गए होंगे सिग्नम फंक्शन क्या है. Now let us come and let us discuss something else, that is you can say transcendental function. Transcendental function is what? What do you mean by TRANSCENDENTAL? TRANSCENDENTAL ट्रांसेंडेंटल फंक्शन. ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है? बेसिकली फंक्शन को अगर हम जनरल डिवीजन करें तो इसके दो टाइप्स हैं. वन इज़ एल्जेब्राइक फंक्शन, अनदर इज नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन. एंड all non-algebraic functions are called transcendental functions. जितने नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं सबको हम क्या बोलेंगे? ऑल आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस. सो व्हाट आर दे? उसमें आप देखेंगे हम लिख रहे हैं TILE, टीले मीन्स व्हाट? टीला जो मिट्टी का बनता है वो, उससे रिलेट करना चाहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीले? टी का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन. आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. एल का मतलब हो गया, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन. और ई मीन्स, ई कैपिटल ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आप समझता है, जितना जो पढ़ाई किया है स्कूल में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल 6 फंक्शंस जो थे दे ऑल आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. उसके इन्वर्स में आ गए तो साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, और बाकी उसके जो 3 और अदर्स हैं वो सब के सब क्या हैं? दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब हो गया log x, log 2x, log 5x, log 9x एंड सो ऑन. सो एक्सपोनेंशियल मीन्स e to the power x. इसमें कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे देर आर यू कैन से इवन फंक्शन, ऑड फंक्शंस, implicit function, IMPLICIT, implicit function, and explicit function. आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, they have been divided in your engineering college on the basis of the gradation that they are coming from the jurisdiction of implicit function or they are from explicit function. And even or odd functions तो आप जानता ही है. if you don't know then please tell me. even function क्या है? आप लिखते हो कहीं f minus x is equal to f plus x, both are equal. Then this function is what? even function. आप कहते हैं इसका संत का स्वभाव है, सज्जन है.
और आप हिंदी में व्याख्या करते हैं कि इस जैसे ये सुख में रहता है वैसे ये दुख में भी रहता है। लॉजिकली you want to say that that function is a even function because f minus x is equal to f plus x. That is what? That is even function. जैसे आप कहीं लिखते हो, आप let us take example, if you are taking x square plus 2, क्या लिया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आप x की जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए तो क्या होगा? ये दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 मीन्स दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप देखो एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और एफ माइनस एक्स का भी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही है। मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स। दिस फंक्शन इज व्हाट? दिस इज इवन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के लैंग्वेज में आप दिखा सकते हो, यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप कहीं लिखे हो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या लिखा? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप x की जगह पर LHS में माइनस एक्स कर दीजिए, f माइनस एक्स, देन ये क्या हो गया? cos माइनस एक्स मीन्स प्लस cos एक्स। तो ये क्या हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और f माइनस एक्स भी cos एक्स। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स मीन्स cos एक्स इज ए वाट? cos एक्स इज एन इवन फंक्शन। cos x क्या है? एक इवन फंक्शन है स्टूडेंट्स। आई होप आप समझ गए होंगे इवन फंक्शन क्या है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, यू हैव गॉट मी दैट व्हाट इज इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन के बारे में आप देखो, इफ प्लीज राइट ODD ऑड फंक्शन। इफ एफ एक्स is not equal to f minus x. If fx is not equal to f minus x, fx का वैल्यू और f minus x का वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है। बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, बोथ आर नॉट इक्वल, सो दे आर व्हाट? दे आर ऑड फंक्शन। आप एग्जांपल ले लो, fx is equal to sin x, then take f minus x, then sin अंडर ब्रैकेट माइनस एक्स। तो ये तो साइन में एंगल बाहर निकल जाएगा माइनस, तो दिस विल बी माइनस साइन एक्स। आप क्या देखा? एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है, एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स है। इट मीन्स एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स। सो दिस फंक्शन इज व्हाट? दिस इज an odd function. In the sense of algebra or with the help of algebra, you can take another example of odd function by taking it as fx is equal to x cube plus 5. So f minus x इसका करेगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 5, बिकॉज आपका ऑड का निगेटिव का ऑड पावर करेंगे तो इट विल गिव यू निगेटिव वैल्यू। सो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ माइनस एक्स। सो दिस फंक्शन इज व्हाट? दिस फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। So students, I advise you that kindly go through the numerical examples of the chapter. आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से को बनाना शुरू करें। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर यू कैन सेंड योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करके आपको व्हाट्सएप करूंगा और कल के फिर फेसबुक लाइव में मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। इट इज़
for you to utilize your time. It is for you to use me how you can. I'm just giving you this opportunity कि आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे पढ़ सकते हैं. इट इज़ फॉर यू टू टेक डिसीजन. और आप केवल कहानी सुनने में विश्वास रखते हैं तो बस आप खोल दीजिए फेसबुक, बैठ जाइए, आराम से सुनिए. मुझे भी पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं. आई एम डिस्चार्जिंग माई ड्यूटी, दैट इज़ माई मोरल ड्यूटी इन दिस लॉकडाउन. अब इट इज़ योर ड्यूटी टू डिस्चार्ज योर मोरल ड्यूटी, दैट इज़ फॉर यू एंड फॉर योर सोसाइटी. So please don't spoil your time. You try to accommodate your time in your fruitful task. तो ये फंक्शन का न्यूमेरिकल अब आपको बनाने हैं. जो नहीं बनना है वो मुझसे पूछने हैं. कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एल्जेब्रा. तो हमारा अब स्टार्टिंग होगा डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का कल से. टुमारो वी आर coming to start algebra, and in algebra tomorrow I will teach you determinant chapter. Students, once again I would like to remind you that in every night at 9-10 PM. नमस्ते आयुष जी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि प्रत्येक दिन रात में 9:10 पर मैं फेसबुक लाइव आता हूं, जहां IIT JEE की तैयारी या +2 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं. चैप्टर वाइज मैंने अभी 11th का पूरा पोर्शन ख़त्म करने के बाद जो IIT JEE के सिलेबस में है, मैंने 12th में जनरल वैल्यूज़ एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल वैल्यू ख़त्म कर दिया है. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म कर दिया है. और अभी हमने शुरू किया है सेट थ्योरी में. इसका जो 12 का जो सेट थ्योरी पार्ट है, मैंने उसमें ख़त्म किया है. ये क्या बोलते हैं आपको, फंक्शन. और सॉरी, मैंने कहा कि अब हम डिटर्मिनेंट की तरफ चलेंगे. सेट थ्योरी में अभी एक और भी चैप्टर बचता है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन चैप्टर. तो रिलेशन हम कल स्टार्ट करेंगे. आई होप कि दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू स्टडी रिलेशन आर रिक्वेस्टेड दैट काइंडली ज्वाइन माई दिस फेसबुक लाइव सेशन. 9:10 पर आप जुड़िए. आपके इर्द गिर्द में जितने स्टूडेंट हैं सबको मैसेज दे दीजिए. और प्रत्येक दिन संडे को मैं 5 बजे से 6 बजे तक मैं BSc, MSc, MTech, BCA, MCA के स्टूडेंट के लिए लाइव आता हूं, जहां मैं उनके सिलेबस के अनुसार क्लास लेता हूं. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. आज आपको क्लास अच्छा लगा होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं. और कल के लिए मैं आपको रिलेशन चैप्टर का हिंट्स दे के जा रहा हूं. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बना इस फंक्शन चैप्टर का, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, फेसबुक पर लिख दीजिए, मैसेज डाल दीजिए. अगर आप चाहें तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेरी गूगल पर क्लासेस लगती है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एंजॉइंग मी. नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद.